हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर से क्वेश्चन फॉर नीट चौका नंबर 4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction with A ahead of B. The driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? 450 meter, 1250 meter, 800 meter, 1650 meter. Question number 2. On a two-lane road, car A is traveling with speed of 36 km per hour. Two cars B and C approach car A in opposite directions with a speed of 54 km per hour each. At a certain instant, when AB is equal to AC, both being 1 kilometer, B decides to overtake before C does. What minimum acceleration of the car B is required to avoid an accident? 0.75 meter per second square, 1.2 meter per second square, 1.0 meter per second square, 1.5 meter per second square. Question number 3. Two towns A and B are connected by regular bus service with a bus leaving in either side every 10 minutes. A man cycling with a speed of 220 km per hour in the direction A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period T of bus service? 9 minutes, 12 minutes, 18 minutes, 15 minutes. Question number 4. A conveyor belt is moving horizontally at a speed of 4 meter per second. If a box of mass 30 kg is gently laid on it, it takes 0.1 seconds for box to come in rest on the belt. The distance moved by the box on the conveyor belt in meter per second is 0, 0.2 meter, 0.4 meter, 0.8 meter. Now solution. Question number 1. Two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed 72 km per hour in the same direction. With A ahead of B, the driver of B decides to overtake A and accelerate by 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? 450 meter, 125 meter, 800 meter, 1650 meter. दो ट्रैक हैं, पैरेलल ट्रैक. Suppose A train is here and B train is here. Moving AB left to right, AB left to right. यहाँ पर suppose driver D, this is guard G. यहाँ पर driver D, guard G. जो गार्ड और ड्राइवर, दिस इज बी ट्रेन, दिस इज ए ट्रेन.
सपोज जो बी गार्ड और डी ड्राइवर ऑफ ए, द डिस्टेंस इज x. After 50 seconds, a train reaches here. A, this is driver guard. B train guard just bruises the driver of A, यानी कि guard just सामने आ जाता है इसके. This is driver and this is guard. B train x जो इनिशियल डिस्टेंस है गार्ड और गार्ड ऑफ बी एंड ड्राइवर ऑफ ए इज टू बी कैलकुलेटेड. मिनट 50 सेकेंड में जो ए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन 50 सेकेंड्स. और अगर हम 50 सेकेंड में बी का देखें तो यहाँ से ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दिस मच. अगर इसको हम एस ए से डिनोट करें और दिस इज एस बी. ये एस ए एस बी इज इक्वल टू एक्स में अगर ऐसे जोड़ दें तो एक्स एस बी आ जाता है, एक्स प्लस एस ए. तो एक्स होगा एस बी माइनस एस ए. एस बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 50 सेकेंड बाय ट्रेन बी. जो स्पीड है, स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर और 72 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में 3600 सेंटीमीटर. दिस इज मीटर पर सेकेंड. 2 to 20 मीटर पर सेकेंड. तो एस बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड by train B in 50 seconds. ut plus half at square फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. ut plus half at square. u है 20 इंटू 50 प्लस हाफ. एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेट किया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 1 इंटू 50 का स्क्वायर. 1000 प्लस 2500 डिवाइड बाय 2. 1000 प्लस 1250. दिस इज 2250 मीटर. ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड by train A in 50 seconds. ट्रेन ए की स्पीड सेम रह जाती है, तो स्पीड इंटू टाइम इज 1000 मीटर. तो x की वैल्यू आ जाती है, गार्ड और ड्राइवर के बीच की डिस्टेंस x इज इक्वल टू एस बी माइनस एस ए. 2250 माइनस 1000 इज इक्वल टू 1250 मीटर. जो गार्ड ऑफ बी एंड ड्राइवर ऑफ डी की ओरिजिनल इनिशियल डिस्टेंस होगी x, दैट इज 1250 मीटर. दिस बी इज करेक्ट ऑप्शन.
Question number 2. On a two-lane car, it is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C approach A in opposite direction with a speed of 5054 km per hour each. At certain instant, when AB is equal to AC, both being 1 km, B decides to overtake before C does. What minimum acceleration of the car B is required to avoid an accident? 0.75 meter per second square, 1.2 meter per second square, 1.0 meter per second square, 1.5 meter per second square. Speed of car A. Speed of car A is 36 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दें. 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600. This comes 10 meter per second. Speed of car B is equal to speed of car C is equal to 54 kilometer per hour, और 54 into 1000 divided by 3600, 3, 2, 5, 15 meter per second. अब एक रोड, टू लेन रोड, A is moving in this direction. This is A. B is moving in the same direction. This is B. And C, opposite direction. This is C. यहाँ पर दिस डिस्टेंस जब वो एक्सलेट करना शुरू करता है 1 किलोमीटर या 1000 मीटर, एंड दिस डिस्टेंस AC इज आल्सो 1000 मीटर. सपोज इसका एक्सेलरेशन A मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. T टाइम बाद B ओवरटेक्स. Suppose at this point, this is point T, after T time. B overtakes. तो B मूव करेगा दिस डिस्टेंस. इसको अगर हम SB से डिनोट करें, SB इन T टाइम. A मूव करेगा दिस डिस्टेंस SA, और C मूव करेगा दिस डिस्टेंस SC. तो SB में से अगर SA माइनस कर दें, दिस इज 1000, क्वेश्चन नंबर 1. और SA और SC को प्लस कर दें, SA प्लस SC इज आल्सो 1000, क्वेश्चन नंबर 2. अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो SB प्लस SC इज इक्वल टू 2000. इक्वेशन नंबर 3.
SB initial velocity is 15 into t plus half at square, और SC ये कांस्टेंट होगा 15t। और SA will be 10t। SA और SB की वैल्यू हमने इक्वेशन SC की वैल्यू इक्वेशन में पुट, वैल्यू ऑफ SA and SC in equation 2, तो 10t plus 15t is equal to 1000, 25t is equal to 1000, t is 1000 by 25 is equal to 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में वो क्रॉस करेगा उसको। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड SB माइनस SA इज इक्वल टू 1000, SB है 15t प्लस हाफ AT स्क्वायर और SA है 10t इज इक्वल टू 1000 और 5t प्लस 1/2 AT स्क्वायर इज इक्वल टू 1000, t है 40 सेकेंड, 5 इंटू 2 40 प्लस हाफ A इंटू 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1000, 200 प्लस 1/2 A इंटू 1600 इज इक्वल टू 1000 और 800 A इज इक्वल टू 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800, A इज इक्वल टू 800 बाई 800, 1.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन होगा 1.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस C is correct option. Question number 3. Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t time. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period T of the bus service? 9 minutes, 10 minutes, 18 minutes, 15 minutes. एक ये रोड है, here is A city, this is B. Two towns A and B. सपोज साइक्लिक अगर हम सबसे पहले अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली बस सर्विस को देखें, सपोज दिस इज ए साइक्लिस्ट S C
इस साइड से अपोजिट साइड से बस सर्विस आती है। मान लिया बस की स्पीड इज v, स्पीड ऑफ बस v। सपोज एक पर्टिकुलर टाइम पर एक बस जो इधर को जा रही है इसके सामने है और एक बस इससे t टाइम की दूरी पर, t टाइम पीछे है। अगर हम नंबर दें, ये नंबर 1 बस, ये नंबर 2 बस, ये टाइम t टाइम पीछे है, इट मीन्स इसकी डिस्टेंस जो स्पीड है बस की उसको t से मल्टीप्लाई करें, दिस इज vt। ये साइकिलिस्ट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर इस पॉइंट पर किसी x1 पॉइंट पर आता है और ये सेकंड बस भी x1 पॉइंट पर पहुंच जाती है। 6 मिनट बाद ये क्रॉस करेगी, 6 मिनट बाद। तो 6 मिनट में साइकिलिस्ट मूव करेगा 6 इंटू स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट एंड बस मूव करेगा 6 इंटू स्पीड ऑफ बस। दिस टोटल विल बी इक्वल टू vt। इसको हम फॉर सिंप्लिसिटी किलोमीटर पर मिनट में ले लेते हैं, पर मिनट। तो स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट होगी, साइकिलिस्ट दी है 20 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर दें इसको, 60 मिनट 1/3 किलोमीटर पर मिनट। तो इक्वेशन हमारी आ जाती है v t इज इक्वल टू 6 इंटू 1/3 प्लस 6 इंटू v, 2 प्लस 6v, vt, इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेम साइड in the direction of बस की डायरेक्शन है ए टू बी, साइकिलिस्ट भी इधर को चल रहा है और सपोज बस नंबर 1 एनकाउंटर इट एट दिस पॉइंट, दिस इज 1 नंबर। दूसरी बस इस समय जब एनकाउंटर करेगा तो इससे दो नंबर बस, दिस इज एट डिस्टेंस vt, क्योंकि स्पीड दोनों तरफ की बसों की सेम है, vt। In 18 seconds, the 2 number bus encounters this cyclist. Suppose 18 मिनट बाद साइकिलिस्ट एट दिस पॉइंट और ये बस नंबर 2 भी इस पॉइंट पर आ जाती है, 2 नंबर बस। तो 2 नंबर बस will move this much and cyclist will move this much in 18 मिनट। तो 18 मिनट में जो साइकिलिस्ट मूव करेगा दैट इज 18 इंटू वी और दिस विल मूव 1/18 इंटू 1/3 इज 6 किलोमीटर। तो vt होगा 18v माइनस 6, vt इज इक्वल टू 18v माइनस 6, इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल रख दें, 2 प्लस 6v इज इक्वल टू 18v माइनस 6 और
18v minus 6v is equal to 2 plus 6, 8, and this is 12v is equal to 8. So v is equal to 8 by 12 is equal to 2 by 3 किलोमीटर पर मिनट. v की वैल्यू 2 by 3 किलोमीटर पर मिनट. अब इसको हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया. सेकेंड इक्वेशन है वी टी इज इक्वल टू 18v माइनस 6. तो v इज 2 by 3 t इज इक्वल टू 18 इंटू 2 by 3 माइनस 6. 12 minus 6 is equal to 6. So t is 6 into 3 by 2 is equal to 9 minute. t की वैल्यू होगी 9 मिनट. This A is correct option. Question number 4. A conveyor belt is moving horizontally at a speed of 4 meters per second. If a box of mass 30 kg is gently laid on it, it takes 0.1 seconds for the box to come to rest on the belt. The distance moved by the box on the conveyor belt in meter is 0, 0.2 meter, 0.4 meter and 0.8 meter. A conveyor belt this is conveyor belt moving on the road wheels. इस पर अगर हम एक बॉक्स पुट कर देते हैं तो इनिशियल स्पीड ऑफ बॉक्स इज 0. जब इस पर पुट कर देते हैं तो इसकी रिलेटिव स्पीड of box with respect to conveyor belt is backward. Due to friction जो कन्वेयर बेल्ट इसको फॉरवर्ड पुट करने की कोशिश करता है और जब ये गेन कर लेता है कन्वेयर बेल्ट की स्पीड ये कन्वेयर बेल्ट के साथ मूव करने लगता है तो v फाइनल वेलोसिटी इज़ 4 मीटर पर सेकेंड. जो स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड जो कन्वेयर बेल्ट की स्पीड है. तो इनिशियल स्पीड इज़ u और टाइम टेकिन जो टाइम लिया है उसने उसके साथ मूव करने के लिए दैट इज़ 0.1 सेकेंड. डिस्टेंस v is equal to u plus 80. v is 4, u is 0 plus a into t. So 4 is equal to 0.1 a is equal to 4 by 0.1, 40 meter per second square. S is equal to ut plus half at square. u is 0 into 0.1 जो टाइम पीरियड है 1 by 2 into 40 into 0.1 का स्क्वायर 0 plus 20 into 0.01 is equal to 0.2 मीटर. जो मूव करेगा वो 0.2 मीटर. B is correct option.